Yeah, forgotten Shital. Now I remember. Thank you. So the volume of the mode used was 950 ml. Make necessary calculations and plot the compaction curve and obtain the maximum dry density and optimum water content. Full stop. Also calculate the White's ratio, the degree of saturation, and the theoretical maximum dry density when G is 2.70. When G is 2.70. So what is given to you? You have been given water content. You have been given water content and mass of wet soil has been given to you. Water content is given to you. Mass of wet soil is given to you. Following, mass of wet soil is given to you and volume of mold is given to you. So what you have to do, you have to do all the calculations. You have to draw the compaction curve. You have to draw the compaction curve. You have to get the maximum dry density. You have to get the optimum water content. You have to get the optimum water content and calculate the White's ratio, degree of saturation, and the theoretical maximum dry density. These things you have to calculate. It is given that G is equal to 2.70. It is given that G is equal to 2.70. Why it is disturbing? Okay, clear the things. The volume of the mold used was 950 ml compaction curve. तो ये सारा आपको करना है. This table is given to you. This table is given to you. So what you have to do? Volume is also given. G is also given. You have to make all calculations. You have to make all the calculations, and after making the calculations, you have to draw the graph. After drawing the graph, you have to find OMC, that is optimum moisture content, और MDD, that is maximum dry density. तो देखिए एक कैलकुलेशन मैं आपको डिटेल में करके बताता हूं, बाकी के सब आपको टाइम देता हूं 10-15 मिनट्स, आपको सब करना है. ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेशन मैं करता हूं फर्स्ट रीडिंग के लिए. वाटर कंटेंट हियर इज 0.12. Water content here is 0.12 and mass of wet soil is 1.68. मैं एक फर्स्ट रीडिंग के लिए जो पूछा सभी करता हूं और आप बाद में सबके लिए कर सकते हैं. ओके, ठीक है. तो एक रीडिंग के लिए देखो, वाटर कंटेंट 12% है. Water content is 12%. Mass of wet soil is 1.68. Mass of wet soil is given, volume of mold is given. So density can be found. So bulk density rho is equal to mass by volume, isn't it? So bulk density is equal to mass by volume, and mass is 1.68, that is in kg. I want in grams. Multiply by 1000 divided by volume. Volume is 950. So rho is equal to 1.68 into 1000 by 950. 1.68 into 1000 by 950. So this is 1.768 gram per cc. 1.768 gram per cc. First of all, you have to calculate density. Whatever the calculation I am doing, this is for only first reading. So density is given by mass by volume. Mass is 1.68 into 1000 divided by 950. In 950 volume, this is mass is in kg converted into grams. So density is equal to 1.768 gram per centimeter cube. Now rho d, that is dry density. We are interested in dry density, and dry density is given by rho divided by 1 plus w. AB formula, standard formula learnt in first chapter. So rho d is equal to rho divided by 1 plus w. यहाँ पर water content 12% है, तो 1.768 bulk density है, divided by 1 plus 0.2.
or 0.12. So rho D is equal to 1.76 divided by 1.12. So it is 1.578 gram per centimeter cube. Rho D is equal to 1.578 gram per centimeter cube. So once you get rho D, that is बस है उतना वाटर कंटेंट है, rho D मिला तो ग्राफ बना सकते, लेकिन उन्होंने आगे क्या पूछा और E पूछा, और E के बाद वाइड्स रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी तीनों पूछा। तो मैं वो तो हम बाद में करेंगे। तो पहले क्या करो, आप सभी रीडिंग्स के रो निकालो और सभी रीडिंग्स के रो डी निकालो फटाफट, प्लीज डू इट। सेकेंड रीडिंग का रो मास बाय वॉल्यूम, दैट इज 1.85 into 1000 डिवाइड बाय 950 करो, और सेकेंड रीडिंग का रो डी निकालो, रो डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। इसी तरह आप सारे रीडिंग्स के रो निकालो और रो डी निकालो, प्लीज डू इट, टेक योर टाइम एंड डू इट। कैलकुलेशन आपको ही करना है, करो प्लीज सभी लोग। 5 minutes टाइम आई विल गिव यू। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? वाटर कंटेंट दिया, मास ऑफ सॉइल दिया, आपको डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया आपको 950 ml। एक रीडिंग फर्स्ट का मैं करके बताया आपको, डेंसिटी कैसा निकाला, ड्राई डेंसिटी भी कैसा निकाला आपको बताया। आपको बचे हुए सारे और 4 रीडिंग्स है, 5 है, 1 2 3 4 5, हाँ, पांचों रीडिंग्स का रो निकालना है और रो डी निकालना है, प्लीज डू इट। कर रहे कैलकुलेशन, करे तो चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, व्हाट आर दी रो ऑफ, सभी एकदम कैलकुलेशन करके लिखो प्लीज। रो फॉर सेकेंड रीडिंग, रो फॉर थर्ड रीडिंग, रो फॉर फोर्थ रीडिंग, रो फॉर फिफ्थ रीडिंग, एंड देन रो डी, सभी का कैलकुलेशन करो, रो और रो डी, प्लीज डू इट। मैं सैंपल कर चुका हूं एक रीडिंग का, सिर्फ आपको ही करना है। कल भी ग्राफ शीट लेकर आओ, 3-4 प्रॉब्लम और करेंगे, तो आपको पूरा कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस हो जाता है यहाँ पर, और ग्राफ भी बनाना। एक सैंपल ग्राफ में बना के बताता हूं आपको। यस, करो प्लीज सभी लोग, और हो गए तो आंसर्स प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते, कोई अकेले तो लिखो कम से कम, प्लीज करो इसको, चुप देखते मत बैठो। शायद तो मैं कैलकुलेशन पूरे करके आपको बता सकता हूं, लेकिन कोई यूज नहीं है। आप खुद करो ये प्रॉब्लम और खुद ग्राफ ड्रॉ करो।
Please do the calculations and write in the chat box what are the different values of rho. Second reading 1.85 into 1000 divided by 950. Third reading 1.91 into 1000 by 950. Then 1.87 into 1000 by 950. 1.87 into 1000 by 950. Same reading है दोनों ही. Then 1.85 into 1000 by 950. इस तरह सभी के रो निकालो आप. इतना देर नहीं लगता. कर रहे क्या? ऐसे बैठ गए. रो निकालने के बाद हर एक का रो डी निकालो. रो डी इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू. रो डी इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू. कर रहे क्या? नहीं. प्लीज डू इट. मैं चुप आंसर्स लिख के यहां रखा तो कोई मतलब नहीं है. आपको कैलकुलेशन करना है, सीखना है. और कल तो मैं 3-4 प्रॉब्लम कराऊंगा आपको. You have to solve this. फटाक से what is rho and what is rho d? Please calculate. Yeah, somebody did. Let me see. Yes, Sheetal Bahirwade did. Very good, beta. Yes, these are the densities. Okay, now you calculate, Sheetal, dry densities. So at least one fellow did. Others, please try it. Dry density निकालो बेटा. Dry density is given by gamma rho d is equal to rho divided by 1 plus w. जो आपका आंसर आया that divided by 1 plus corresponding water content. Corresponding water content. Yes, Mayuri also did. Vaishnavi did. Very good. Yes, और सभी के आंसर करेक्ट है. बिल्कुल करो प्लीज. अब रो के बाद प्लीज निकालो व्हाट इज रो डी. रो के बाद फाइंड आउट करो व्हाट इज रो डी. एंड रो डी इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू. करो और चैट बॉक्स में आंसर्स लिखो. कैलकुलेटर ले, कैलकुलेशन करो. ओके प्रियंका 229.2. ओके बेटा. Bhosle Vaishnavi. These are row D. I think Vaishnavi, our answers are row D. Isn't it? Yes. Dry density. Yes, Mayuri. बिल्कुल करेक्ट है. So बहुत से लोग किए. You have found what is rho and what is rho D. Most of you did what is rho and what is rho D. तो यहां पर है, देखिए आंसर चेक कीजिए. वाटर कंटेंट 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2022 और ये मास ऑफ वेट सॉइल दिया हुआ है केजी में. और ये है बल्क डेंसिटी, आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला था मैं. और ये है ड्राई डेंसिटी 1.58, 1.71, 1.73, 1.67, 1.64 और 1.60. चेक कर लो प्लीज. यस आरवी, वेरी गुड. ई भी निकाला आरवी. ओके गुड. फिर ई भी हम बाद में निकालेंगे, अभी जरूरत नहीं है उतना. इफ यू डिड इट इज वेल एंड गुड. सो ड्राई डेंसिटी तक निकालो सभी लोग प्लीज. दीज आर रो, दीज आर ड्राई डेंसिटीज. These are dry densities. आंसर चेक कर लो प्लीज. रो और ड्राई डेंसिटी. ओके प्रियंका, वेरी गुड. तो 1.595 मीन्स 1.60 बिल्कुल करेक्ट है. यू गॉट द राइट आंसर्स. ये अप्रोक्सीमेट आंसर है बुक के, आपके एक्यूरेट आंसर्स है. सो वंस यू गेट रो डी एंड फर्स्ट
table is water content. You draw a graph. Here it is did. बट मैं भी कल शाम को बैठ के ग्राफ को ड्रॉ कराऊं. ये आप एक्स एक्सिस वाटर कंटेंट ले लो और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाटर कंटेंट ले लो और वाई एक्सिस को आप ड्राई डेंसिटी ले लो. ड्राई डेंसिटी ले लो. पूरा ग्राफ फिगर करेक्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं. देखिए मैं कहां से स्टार्ट किया हूं रीडिंग. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.09, 0.1. यहां तक वाटर कंटेंट 0.1 है. फिर 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, ऐसा ही करते करते 0.2, फिर 0.3 तक जाता है. और ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लो तो ऐसा नहीं, आप वर्टिकल भी कर सकते, आपका स्केल चेंज हो जाता. और ड्राई डेंसिटी मैं स्टार्ट किया हूं कहां से, 1 से स्टार्ट किया हूं, या बुक का है ना यही ले लो. 1 से स्टार्ट किया के 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, ऐसा आप वर्टिकली ले लो. वर्टिकली भी ऑर्डिनेट ड्राई डेंसिटी ले लो, हॉरिजॉन्टली एब्सिसा वाटर कंटेंट ले लो. हॉरिजॉन्टली एब्सिसा वाटर कंटेंट ले लो. अब देखिए पहला रीडिंग क्या है. पहला रीडिंग वाटर कंटेंट 0.12 है, ड्राई डेंसिटी 1.58 है. तो 0.12 के लिए 0.1 यहां तक है, 0.12 के लिए 1.58 ये पहला पॉइंट आता. उसके बाद दूसरे पॉइंट के लिए 1.14 के लिए डेंसिटी इज 1.71. तो फिर 1.71 पॉइंट जो भी रीडिंग है उसके लिए. तो ऐसा ही आप अलग अलग वाटर कंटेंट के लिए अलग अलग डेंसिटीज ले लो और एक ग्राफ ड्रॉ करो. ऐसा कर्व करो, प्लीज जल्दी करो. ये चुप देख के मत लिख लो आप, मैं खुद किया हूं टीचर होके तो आपको तो करना ही है. तो इस तरह एक ग्राफ ड्रा करो. ये वाटर कंटेंट इधर है और ये कर्व आता है ऐसा आपको एक. दिस कर्व इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन कर्व. तो प्लीज ग्राफ ड्रॉ करो. और आप जब ग्राफ ड्रॉ करते तो जो मैक्सिमम पीक पॉइंट है ना वहां स्केल रखो. वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो ऑर्डिनेट पे, एक वर्टिकल लाइन ले लो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जहां पर ज्वाइन होता इट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और जहां पर हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होता, जहां पर हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होता जैसा कि यहां पर यहां, तो दिस इज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी. So in this way you have to draw a graph and get the OMC and MDD. OMC and MDD. You draw a curve and show me please. Draw करके what is your OMC and what is your MDD. अभी मैं आपको 3-4 मिनट टाइम देता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करो फटाक से स्केल लेके
कैलकुलेशन रीडिंग्स आप कर चुके हैं, तो उसके बाद यू फाइंड व्हाट इज ओएमसी एंड व्हाट इज एमडीडी. व्हाट इज एमडीडी, प्लीज फाइंड आउट. So like this you will get water content, this is density, a curve you will get, the maximum peak point you have to take, draw a horizontal line from that, draw a vertical line from that, vertical line will join at water content to optimum moisture content, and horizontal will join at a point it is maximum dry density. ठीक है, ड्रॉ करो, अभी टाइम आपके पास, इसके बाद थोड़ा एक ब्रेक ले लो छोटा सा, और फिर उसके बाद हम वाइड्स रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और थेरोटिकल डेंसिटी कैसा निकालना वो बताता हूं. ये प्रॉब्लम घर में फिर आप कंप्लीट कर लो. कल मैं और 2-3 टाइप के नए नए प्रॉब्लम्स कराऊंगा. प्लीज ग्राफ शीट साथ में रखो, कैलकुलेशन करो और उतारो. चुप क्लास में सुने तो अभी थोड़ा तो समझ में आता, ऑनलाइन में तो चुप आप ऐसा देखते बैठे तो कुछ नहीं होता. इफ यू ड्रॉ इट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. तो अगर से ग्राफ शीट है तो ड्रॉ करो इसको प्लीज, अगर से नहीं है तो आज खरीद लो, आज शाम तक इसको, इस प्रॉब्लम को भी ड्रॉ करो, और कल के लिए भी अपने साथ ग्राफ शीट रखो. कल भी मैं यही करा रहा हूं आपको, कैलकुलेशंस खुद करो.